السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس پنڈت کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اس سے ایک بچے نے ایسا سوال کیا کہ پنڈت کی بولتی بالکل بند ہو گئی۔ تو دوستو، بچے نے کیا سوال کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، اسی ٹاپک کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بہترین سا بیان ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ سکے۔ ہاں دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یعنی جو بھگوان، یہ سب بھگوان کی مرضی ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے؟ کون سی بھگوان کی مرضی؟ یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں سب بھگوان نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ہاں، آگے والا کوشچن کرو، اس کا آنسر دیں گے، آگے پوچھو تو پھر۔ یعنی مطلب ہم جو بھی پاپ کرتے ہیں یا پون کرتے ہیں اس کا پھل بھی ہمیں ملتا ہے، یہ تو ہم کہاں؟ پاپ کر رہے ہیں وہ تو بھگوان کی مرضی ہے نا، تو ہمیں پاپ کیوں مل رہا ہے؟ ویری نائس، ہمیں پتا تھا تم وہیں پہنچو گے، اس لیے ہم نے پہلے کوشچن کا آنسر نہیں دیا، کیونکہ ہم جانتے تھے تم کہاں کے لیے نکلے ہو۔ مین کویشچن یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ آ جا، پاپ پون کے اب بعد سن لے، رک جا، پکی بات سمجھ لے، اگر میں سمجھاؤں گا اور تو وہ سمجھ گیا تو جیون بھر دوبارہ یہ کوشچن نہیں لائے گا۔ بولو ہاں؟ ہاں پکا؟ پکا۔ اب سنو، آپ کا جنم کس گھر میں ہوگا؟ آپ کی دو آنکھ ہوں گی کہ ایک آنکھ ہوگی؟ تمہارا ایک ہاتھ ہوگا کہ دو ہاتھ ہوں گے؟ ایک پیر ہوگا یا دونوں ہی پیر نہیں ہوں گے؟ تم کتنے بدھیمان ہوگے؟ تم سوستھ ہوگے کہ اسوستھ ہوگے؟ تم ہینڈسم ہوگے کہ تھوڑے سے ڈارک بھی ہوگے؟ یہ سب تمہارے پورو جنم کے کرموں پر نردھارت ہو کر پرماتما پہلے ہی لکھ دیتا ہے، جسے ہم پراربدھ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دھیان سے سننا بھی نہیں، تالی نہیں بجائیے۔ پرماتما نے تمہارا پراربدھ لکھ دیا، کس پہ لکھا؟ پچھلے کرموں کے حساب سے لکھ دیا۔ کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے، جنگ احزاب کا، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں، جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000، اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی، بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے۔ اور یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے۔ کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جب ہم پڑھتے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا، اوور تھرو 20 کنگز، اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے، جو 20 ٹرائبس، اس کا مطلب 20 سردار تھے، 20 راجا تھے، اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ اور لکھا ہے بھوشیہ وانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے۔ ابندو کے ایک معنی ہے آرفن، آرفن جس کی کوئی والدین نہیں ہے، یتیم۔ اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے، جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بھوشیہ وانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں۔ بھوشیہ وانی ہو بہو وہی ہے، لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما، اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے۔ ہم ترجمہ کریں گے، عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں، اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے۔ جب ہم سام وید پڑھتے ہیں، سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا، بیوی حلیمہ کا پیا۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। साम वेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, साम वेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद chapter number 31 verse number 18, Rigved book number 8 chapter number 6 verse number 10, Atharva Ved book number 8 chapter number 5 verse number 16, Atharva Ved book number 20 hymn number 126 verse number 14। कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नराशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 verse number 3, Rigved book number 10 hymn number 182 verse number 2, Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 19, Yajurved chapter number 28 verse number 42, Yajurved chapter number 29 verse number 27। सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संभाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार। और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे। और ये आएंगे एक घोड़े पे, सीधे हाथ में तलवार लेके, और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल के अवतार, जो संभाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में कि ये कल की अवतार जन्म लेंगे विष्णु यास के घर और सुमति की कोख में। सुमति की कोख में कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल की अवतार पैदा होंगे
12वीं तारीख माधव के मंथ में, माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्र जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं, जो मेन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा मैं। इन मंत्रों और इन श्लोक में लिखा है कि ये कल्कि के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर, खुदा, यास मतलब बंदा, विष्णु का बंदा, खुदा का बंदा। खुदा के बंदे को हम अगर तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है अब्दुल्ला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। इसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के माँ का नाम है सुमति। सुमति की मानी है अमन। अमन का तर्जुमा जब करते हैं अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार एक ऐसे शहर में पैदा हो गए जिसका नाम है संभाला। संभाला के मानी है अमन का शहर, और हम जानते हैं मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। ये भविष्यवाणी में जिक्र आता है कि ये अवतार, ये इंसान पैदा होंगे मक्का में। आगे लिखा है कि मक्का के अमीर के घराने में पैदा होंगे, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश खानदान में हुई। आगे लिखा है कि ये 12वीं तारीख माधव महीने के पैदा होंगे, और हम जानते हैं कि कुछ बयानात के हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं रबी अव्वल को पैदा हुए। इसमें यह भी लिखा है कि ये ऋषि अंतिम ऋषि है, यानी आखिरी अवतार है, आखिरी पैगंबर है। हम जानते हैं कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आदमियों में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा है और सबसे जानने वाला है और सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है। आगे जब हम पढ़ते लिखा है कि ये कल्कि अवतार को सबसे पहली वही आएंगी एक गार में, एक केव में, और उसके बाद वो हिजरत करेगा शिमाल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। और हम जानते हैं कि सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आई वो गार हिरा में, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना के तरफ, शिमाल के तरफ, और फिर से वापस लौट आते हैं। इसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के कई क्वालिटीज़ है, कई अच्छे गुण हैं, और लिखा है कि इसको 8 सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ दी जाएंगी, यानी 8 सिफात दी जाएंगी। और ये 8 सिफात का जिक्र जो आता है वो है विजडम, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्टेड लीनिएज, रिवील नॉलेज, वैलर, मेजर्ड स्पीच, अटमोस्ट चैरिटी एंड ग्रेटफुलनेस। जो पहली सिफत है वो है विजडम, हिकमत। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह उनके पास बहुत हिकमत थी, और कई बार दुश्मन भी उनसे मशवरा करने आते थे। दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे काबू रखना। पर हम जानते हैं कई बार दुश्मन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भड़काने की कोशिश करते थे, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति रखते थे। थर्ड क्वालिटी है रिस्पेक्टेड लीनिएज, इज्जतदार घराना, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था कुरैश का। फोर्थ पॉइंट है रिवील नॉलेज, कि उस अवतार को वही आएंगी। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान जो नाजिल उन पर किया गया था वो एक वही थी। पांचवा पॉइंट वैलर, कि वो इंसान, वो पैगंबर, वो अवतार बहुत बहादुर होगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए जितनी जंग जो लड़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग में हिस्सा लेते थे। पॉइंट नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, जब भी वो बात करते थे अपने लफ्ज़ को तोलते थे, और जब भी वो बात करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैगाम फौरन दिल में उतरता था।
पॉइंट नंबर 7, अटमोस्ट चैरिटी। वो बहुत खैरात करते थे और कई इंसान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात पे जीते थे। पॉइंट नंबर 8, अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस। ही वॉज वेरी ग्रेटफुल। वो हमेशा शुक्र अदा करते थे लोगों का और खुसूसन अंसार का। जब मदीना जाते हैं वो लोग का शुक्रिया अदा करते थे। ये 8 गुण, 8 सिफात जो बयान किए गए कल के अवतार के बारे में, वो हू बहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पंडित ने इस बच्चे को क्या समझाया और क्या बोला, वो बयान तो सब आप लोगों के सामने था। और ये भी आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का कितना बेहतरीन सा बयान था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने राय का इजहार ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।